Good morning, students. Good morning, students. Good morning, all of you. Okay, so today we are learn a English subject. Okay, so please, student, give me the answer of these riddles. Okay, I read the riddles. I have pages. People can read me. I am not a book. My name has three syllables and tart like a monkey. Who am I? This is the riddles. Please give me the answers. What is the answers? Okay, very good. This is the answer of this riddles is magazines. Very good. Second riddles. I am a person. This is the one sentence. Huh? All of you listen carefully. I am a person. I have an office. You might come to me if you are not feeling well. Who am I? All of you listen carefully. I am a person. I have an office. Second sentence and third sentence is you might come to me if you are not feeling well. Who am I? Yes, very good. This is the answer of this riddles is nurse. I am the school nurse. Very good. Third riddle. I am made of plastic. One sentence. Second sentence. I am a cylinder. You might want to use me to stick two pieces of paper together. Who am I? Please give me the answer. Very good. This is the answer of this riddle is glue stick. Fourth, I am a big enough to hold a lot of children. I am often very noisy. I have blinking red lights. I have wheels and a horn. Who am I? Okay, very good. The answer of this riddles is school bus. Okay, students. So, students, in this riddle, there are many sentences. Some, for example, I am a big enough to hold a lot of children. This is the one sentence. The second sentence is, I am often very noisy. In first sentence and in this second sentence, there are a lot of difference. Okay. And third, last sentence is, who am I? This sentence is also a lot of difference. These are the lot of in this sentence there are lot of difference. So आप लोग को इस ध्यान में आ रहा होगा कि ऊपर दे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें ये सिंपल सेंटेंस है यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस और जो सेकंड सेंटेंस है वो क्या है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है और जो लास्ट सेंटेंस है वो क्या है व्हाट एम आई यानी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा है उसमें तो ये क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे क्या होते हैं सेंटेंस के अलग अलग टाइप होते हैं तो आज हम क्या सीखने वाले हैं टाइप ऑफ द सेंटेंस ओके all of you understand there are the different type of the sentence in this type of there are different type of sentence so हम क्या करेंगे so we learn one by one the type of sentence okay all of you see this all of you see the screens there are four type of English sentence okay first one is declarative sentence its sentence how we have to identify we had identify declarative sentence with the help of statement okay interrogative sentence second type of the sentence is interrogative sentence okay in this sentence we have to identify with the interrogative how we have to identify with the help of question mark okay imperative sentence third type of the sentence is imperative sentence in this sentence how we have to identify in this sentence shows command okay and fourth type of the sentence is exclamative sentence in this sentence there is the exclamations okay these are the four type of the sentence okay uh, the four type of sentence in the declarative statement interrogative sentence there is question mark and imperative sentence there is command okay and exclamative sentence there is a explanation these are the four type of the sentence all of you note down this type of four type of the sentence in your notebook okay so student we see
the first type of the sentence, declarative sentence and a statement. Okay, in a declarative sentence, make a statement that tell us something, they give us information, and they normally end with a full stop or period. जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है, हमें किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और वो जब समाप्त होता है तभी उसके लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके, और इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक कॉपी, और निगेटिव, आई डू नॉट लाइक कॉपी। सेकेंड सेंटेंस, वी वॉच टीवी लास्ट नाइट, और नेगेटिव, वी डू नॉट वॉच टीवी लास्ट नाइट। ऐसे क्या होते हैं, ये हम लोग देख सकते हैं कि जब सेंटेंस खत्म होता है तभी क्या है, लास्ट में फुल स्टॉप आया है। ओके, और ये जो टाइप है वो क्या है, वेरी कॉमन टाइप ऑफ द सेंटेंस। ये क्या होता है, हमेशा हम लोग जब लिखते हैं सेंटेंस तभी ज्यादातर यूज होने वाला सेंटेंस का टाइप है। ओके, so student, second type of the sentence is interrogative sentence questions. Okay, in an interrogative sentence we ask a questions, they ask us something, they want information, and they always end with a question mark. हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव। उसमें क्या होता है, हमें कुछ तो पूछा जाता है। जैसे हमने रिडल्स में देखा कि हु एम आई, और लास्ट में क्या था, क्वेश्चन मार्क था, मैं कौन हूँ। दे वांट इंफॉर्मेशन, हमसे उनको कुछ तो मालूमात जानना होता है, तभी क्या होता है, वो हम लोग उससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचान सकते हैं। और इसका एंड हमें एक बात ध्यान में रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जब भी लिखते हैं तभी उसके लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ओके, द यूजुअल वर्ड ऑर्डर ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज, और इसका भी क्या है, एक स्ट्रक्चर है, उसे आपको क्या करना है, नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है। WH क्वेश्चन, इसका स्टार्टिंग किससे होता है, WH जो वर्ड है उससे क्या होती है, इसकी शुरुआत होती है, और उसके बाद एक्सिलरी, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब। ओके, जैसे एक्सिलरी वर्ब मालूम है सब लोग को, यू, डी, डू, डिड, जैसे वो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये भी क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप्स के होते हैं। डू यू लाइक कॉफी, डोंट यू लाइक कॉफी, Why did you go, why didn't you go। ऐसे जो अलग अलग प्रकार के पॉजिटिव और निगेटिव, जैसे दो टाइप्स के क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन अ सेंटेंस वी हैव टू कीप माइंड, दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, okay, now we can see the third type of sentence, imperative sentence, command. The imperative sentence give a command. They tell us to do something and they end with a full stop or exclamation mark. अभी हमें इसमें imperative sentence कैसे ध्यान में रखना है कि इसमें क्या होता है, सेंटेंस में कमांड होती है और इसका भी एंड किससे होता है, फुल स्टॉप और एक्सप्लेनेशन मार्क, जो उद्गारवाचक चिन्ह, उससे क्या होता है, ये सेंटेंस का एंड होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी इसके एग्जांपल देखेंगे। नोट दैट देयर इज यूजुअली नो सब्जेक्ट बिकॉज सब्जेक्ट इज अंडरस्टैंड इट इज यू। ओके, इन दिस सेंटेंस में सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड रहता है। इंपेरेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, वो भी पॉजिटिव और निगेटिव दो टाइप के अलग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप, डू नॉट स्टॉप। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस का एंड हुआ है, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस लिखते हैं तब उसके लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, एक्सक्लेमेशन मार्क यानी पॉइंट का इस्तेमाल क्या करते हैं, हमेशा होता है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, गिव हर कॉपी। अभी हम लोग देख रहे हैं जो पहला सेंटेंस है उसमें क्या है, डॉट आया है, फुल स्टॉप, तो ये भी क्या है, इसमें कमांड आई है, गिव हर कॉपी, उसको क्या करना है हमें,
कॉपी देना है यानी किसी को कमांड किया है इस सेंटेंस में, तो वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव में कैसे है, डोंट गिव हर कॉपी, उसे क्या करना है, कॉपी नहीं देना है, इसमें भी कमांड है। और ये नेगेटिव, तो ये भी क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ओके, अब हम क्या करेंगे, आपको समझ में आया इम्पेरेटिव सेंटेंस, वेरी गुड। अभी क्या करेंगे हम लोग, जो फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस है वो क्या है, एक्सप्लेनेटिव सेंटेंस। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा फोर्थ टाइप एक्सप्लेनेटिव सेंटेंस वो सीखेंगे। एक्सप्लेनेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, सरप्राइज एंड एक्सप्लेनेशन, एंड दे ऑलवेज एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क और पॉइंट। हम डेफिनेशन और इसका हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, देखो, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जो सेंटेंस होता है वो किससे पहचान सकते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज, जो कुछ तो जब हम लिखते हैं या हम बात करते हैं। एक्सप्लेनेटिव सेंटेंस कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कोई तो सरप्राइज है घर में, जैसे हमारे पापा का प्रमोशन हुआ है तो उसका फीलिंग हम कैसे जाहिर, फीलिंग कैसे लोगों के सामने बताते हैं। उसके बाद सरप्राइज, कुछ तो सरप्राइज रहेगा, जैसे बर्थडे गिफ्ट का सरप्राइज, वो हमारे जो इमोशन होते हैं वो कैसे यूज करते हैं हम लोग, एक्सप्लेनेटिव सेंटेंस के द्वारा। ओके, और इसका एंड कैसे होता है, एक्सप्लेनेशन मार्क, लास्ट में कौन सा आता है, एक्सप्लेनेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल हॉट, और इसका स्ट्रक्चर कैसे, हॉट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन्स प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। यानी एक्सप्लेनेशन जो सेंटेंस रहते हैं ज़्यादातर वो WH जो वर्ड्स है उससे ही उसकी क्या होती है, हमेशा शुरुआत होती है। ओके, और सेकंड आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि एक्सप्लेनेशन सेंटेंस हमेशा हॉट और सेकंड कौन सा है, हाउ, ये जो दो वर्ड है वो ध्यान में रखना है अपने, इससे ही क्या होती है, एक्सप्लेनेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है। हम अभी एग्जांपल देखते हैं, व्हाट ए लियर हीज। अभी इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे हमें स्ट्रक्चर में बताया है, हॉट एडजेक्टिव नाउन और सब्जेक्ट और वर्ब, उसी तरह ये सेंटेंस में इस्तेमाल किया हुआ है। देख रहे हैं आप क्वेश्चन की शुरुआत, जो सेंटेंस की शुरुआत, सॉरी, सेंटेंस की शुरुआत भी WH से हुई है, उसके बाद एडजेक्टिव आया है, नाउन आया है और सब्जेक्ट। हॉट एंड एक्साइटिंग मूवी इट वॉज, हॉट एंड एक्साइटिंग मूवी इट वॉज, इसमें भी हम लोग देखते हैं वैसे ही आया है। अभी हम लोग हाउ का देखते हैं, हाउ ही लाइड, इसमें भी क्या हुआ है, हम सरप्राइज, इमोशंस, मूवी के बारे में उन्होंने एक्साइटिंग यानी इमोशन, सिर्फ अपनी जो फीलिंग है वो उन्होंने बताया है। ऐसे क्या होता है, हम लोग एक एक्सप्लेनेशन सेंटेंस पहचान सकते हैं कि बाबा कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आप लोग को समझ में आया कि एक्सप्लेनेटिव सेंटेंस का हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेटिव सेंटेंस की जो अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंस है उसके और एग्जाम्पल है वो हम लोग सीखेंगे और भी। ओके ओके स्टूडेंट्स, आप लोग को इस यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक जो टेबल है, इसमें क्या किया है, जो हमारे 4 टाइप ऑफ द सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सप्लेनेटिव, उनके फॉर्म, फंक्शन, एग्जाम्पल एंड फाइनल पंक्चुएशन, इसमें आपको आपके मेमोरी में जल्दी से आने के लिए और आपके ध्यान में परमानेंट रहने के लिए एक जो ग्राफ दिया, ये टेबल दिया है आपको। अभी मैं ये आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, फंक्शन, स्टेटमेंट, इट टेल अस समथिंग। हमें कैसे ये आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इसमें सेंटेंस में क्या होता है, इट टेल अस समथिंग। फॉर एग्जांपल जॉन लाइक मैरी, और जो उसका जो सेंटेंस का एंड है वो किससे हुआ है, फुल स्टॉप से। ओके, जॉन ये क्या कर रहा है, हमें टेल अस समथिंग, ये जो सेंटेंस है हमें कुछ तो बता रहा है ना। तो आपको इससे क्या होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस इजी से आप लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ द सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्वेश्चंस। ओके, इट आस्क अस समथिंग, फॉर एग्जांपल डज मैरी लाइक जॉन। अभी जॉन को मैरी पसंद, पहले सेंटेंस कौन था, जॉन को मैरी पसंद है, लेकिन
सेकेंड सेंटेंस में क्वेश्चन किया है और क्या पूछा है, मैरी को जॉन पसंद है, क्वेश्चन मार्क, और इसका एंड किससे हुआ है, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आपको इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप इजी से पहचान सकते हो। ओके, और थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। फंक्शन क्या होते हैं इसमें, कमांड, इट टेल अस टू डू समथिंग। और इससे में इसमें क्या हम लोग इसे कैसे पहचान सकते हैं, इट टेल अस टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप, स्टॉप, जैसे कोई चल रहा है तो उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कमांड यानी स्टॉप, यानी उसे रुकने के लिए कर रहे हैं। और सेकंड एग्जाम्पल क्या है, क्लोज द डोर, वहीं पे खड़ा रहे और दरवाजा बंद कर, तो ये क्या है, कमांड दिया हुआ है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस इजी से पहचान सकते हैं। और इसका एंड क्या हमेशा एक्सप्लेनेशन मार्क और फुल स्टॉप, इसमें एक्सप्लेनेशन मार्क भी आता है और फुल स्टॉप भी आता है। ओके, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस पहचान सकते हैं। और फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस है एक्सप्लेनेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है, इसका फंक्शन कैसे, यानी स्ट्रक्चर में हमने देखा है कि एक्सप्लेनेशन मार्क और एक्सप्रेस और इमोशंस और सरप्राइज, ये सेंटेंस क्या होते हैं, हमेशा ऐसे ही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, व्हाट अ फनी स्टोरी ही टोल्ड अस, उसने जो हमें जो स्टोरी बताई वो कितनी फनी और इंटरटेनमेंट की जैसी थी। तो इसमें क्या हुआ है, एंड पे हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन मार्क के जैसा है, इसमें उन्होंने फीलिंग अपने एक्सप्रेस किए हैं। ऐसे क्या कर सकते हैं हम लोग, जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो इजी से हमारे ध्यान में भी रख सकते हैं। ये टेबल आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में जो हमने जो टाइप ऑफ सेंटेंस लिखा है वो पहले पेज पे हमें क्या करना है, ये ड्रॉ करना है और आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, okay student, we take the small mini quiz competition. All of you see the screen, there are three questions. Okay, we see one by one, all of you. Okay, all of you give attention to here. First question, which sentence type is the most common? अभी हमने सीखा है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद इंपेरेटिव सीखा है, एक्सक्लेमेटिव सीखा है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सीखा है। अभी उसमें क्या, विच सेंटेंस टाइप इज द मोस्ट कॉमन, हमने बताया है कि कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस कॉमन होता है। तो वहाँ पे ऑप्शन कितने हैं, तीन हैं, तो आपको उसमें से एक चूज करना है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। विच सेंटेंस टाइप इज द कॉमन, तो आंसर ऑफ दिस क्विज इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज द टाइप ऑफ कॉमन। ओके, सेकेंड, हु कम टू द पार्टी, विच सेंटेंस टाइप इज यूज्ड। अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है, हु केम टू द पार्टी, अभी इसमें क्या लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क आया है और इसमें किसके बारे में पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, तो ये कौन सा टाइप होगा, राइट, इट इज द टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, थर्ड, विच सेंटेंस टाइप डज नॉट यूजुअली यूज द सब्जेक्ट। ये जो थर्ड टाइप है सेंटेंस का, हम लोग इसमें विच सेंटेंस टाइप डज नॉट यूजली यूज सब्जेक्ट, ऐसा कौन सा टाइप है जिसमें सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट यानी सब्जेक्ट हम लोग यूज नहीं करते। तो हम लोगों ने देखा है कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इसमें क्या होता है, डज नॉट यूजली यूज अ सब्जेक्ट। ओके, तो हमारा आंसर क्या है इसका, इंपेरेटिव सेंटेंस। वेरी गुड। ओके, ओके स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू सी द स्क्रीन। अभी हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस के और भी हम क्या करेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल और डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन आपको फिर से ध्यान में आए वो देखते हैं। ओके, वन बाय वन। जू इज माई कजिन, देखो सिंपल कॉमन सेंटेंस है। ओके, आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर, सी प्लेड विथ हर ब्रदर, द bus stopped suddenly. We saw many animals at the zoo. There are no marker in the box. Children were playing outside. अभी हम लोग देख सकते हैं ये जो 7 एग्जाम्पल है इसमें क्या है, सिंपल सेंटेंस यूज किए हमने और ये कॉमन, जैसे हम लोग सिंपल बात करते हैं वैसे ही ये सेंटेंस वैसे ही है। ओके, तो व्हाट इज अ सेंटेंस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, मेकिंग सेंटेंस।
A sentence is a group of words that express a complete through. It is a independent clause that contains subject or verb. सेंटेंस कैसे होता है जिसमें क्या होता है सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं. ओके, अब सेकंड देखते हैं. वेयर डू यू लिव? व्हाई हैवंट यू स्टार्टेड स्टडिंग? व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू वांट टू डांस टू? व्हिच कार वुड यू मेक you happier? Which do you prepare, white or red? Who finished your meal today? Raise your hands. Whom did you call to the party tomorrow? अभी हम लोग देखते हैं जो पहला सेंटेंस है वेयर डू यू लिव. अभी जो हमें इसमें क्या किया है क्वेश्चन मार्क पूछा है. अभी हम जो 7 सेंटेंस दिए हुए हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ उन्होंने क्या किया है हमसे वो जानकारी लेना चाहते हैं. सेंटेंस यानी हमसे इंफॉर्मेशन मांगी है उन्होंने पूछा है. क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन करके पूछा है और इसका एंड किससे हुआ है क्वेश्चन मार्क से हुआ है. तो ये सब सेंटेंस कौन से सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके, अभी यहाँ पे एक सिंपल सा मीनिंग बताए डेफिनेशन बताए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अस क्वेश्चंस. जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा हम लोग जो यूज करते हैं या हम लोग इसे कैसे पहचान सकते हैं क्योंकि इसमें हमेशा क्या होता है क्वेश्चंस क्वेश्चंस ही पूछा हुआ रहता है. ओके, अब लोग देखो स्क्रीन में आपको एक बड़ा पिक्चर दिखाई दे रहा है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अस क्वेश्चंस एंड इट आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि इट्स एंड इन अ क्वेश्चन मार्क और इसका एंड हमेशा किससे होता है क्वेश्चन मार्क से होता है. ओके, एग्जाम्पल इट इज रेनिंग. आपके सामने बारिश हो रही है लेकिन आपको कैसे पूछ इट इज रेनिंग क्या ये बारिश हो रही है. देखो कैसे क्वेश्चन पूछा लास्ट में. तो ये कौन सा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ओके, शैल वी गो आउट? शैल वी गो टू द सिनेमा? शैल वी स्लीप? शैल वी नॉट गो टू द सिनेमा? शैल वी नॉट डिनर हियर? डू नॉट टॉक टू मी. Do not talk to me like that. Do not make that sound. Do not walk fastly. अभी ये अब अलग एग्जाम्पल है. इसमें क्या किया है कमांड और पोलाइट रिक्वेस्ट है और इसका एंड भी क्वेश्चन मार्क से हुआ है. लेकिन इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कमांड और पोलाइट रिक्वेस्ट है. शैल वी गो आउट. अभी इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट की है और किसी में शैल वी गो टू द सिनेमा रिक्वेस्ट की है. शैल वी स्लीप रिक्वेस्ट की है. और इसमें जो अलग अलग सेंटेंस है उसमें क्या हुआ है किसी सेंटेंस में कमांड है किसी सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट है और इसमें क्या एंड किससे हुआ है फुल स्टॉप से हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया हुआ है. तो ये कौन से सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस. ओके, तो एग्जाम्पल क्या है क्लोज द डोर कमांड. मे आई बोरो दैट बुक? मैं बुक ला सकता हूँ. मे आई बोरो दैट बुक? मैं वो बुक ले सकता हूँ का ले सकता हूँ. तो पोलाइट रिक्वेस्ट यानी उन्होंने क्या किया है पोलाइट रिक्वेस्ट की है. तो ये कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस है इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस. ओके, अगेन नेक्स्ट एग्जांपल आई लव माय डॉग. माय न्यू कार इज ब्लैक. जॉर्ज brushes her teeth twice a day. She doesn't study German on Saturday. I and my sister don't see each other anymore. Tomorrow early morning first I go to the morning walk. Chemistry is my favorite subject but my brother really likes social studies. They go to gallery every Saturday. Her shoes were brand new and now they are missing. You go to the holiday every summer. अभी हम लोग ये सेंटेंस देख रहे हैं इसमें क्या है सिंपल आई लव माई. हम जैसे डेली बात करते हैं वैसे ही सेंटेंस आई लव माई डॉग. माई नाउ कार इज ब्लैक. हम लोग देख रहे हैं ये सिंपल सेंटेंस है इसमें खाली लास्ट में फुल स्टॉप आया हुआ है. ओके, तो ये कौन से सेंटेंस है सब यू गो टू द हॉलीडे एवरी समर जैसे है ना. तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. सिंपल स्टेटमेंट की जैसे
और ये कॉमन सेंटेंस के जैसे। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, इज पंक्चुएटेड बाय द फ्रेड और फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, द डॉग इन द नेबर एड इज बार्किंग। द डॉग इन द नेबर एड, जो घर के सामने जो बाजू वाले के गार्डन में से क्या कर रहा है, कुत्ता भूख रहा है। ये सिंपल सेंटेंस बोला है उन्होंने, तो इसमें फुल स्टॉप आया है लास्ट में, आप लोग देख सकते हैं। ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। ओके, तो last type of sentence is, we see the example, how beautiful this city is. Sarah wiped the board. Oh, I missed the service. Don't talk, get out. Please help me now. Okay, now it's beautiful. What a coincidence this is. Wait, that breeze is rotten. I am so mad at her. God, I am in heaven. देखो, आप देख रहे हैं जो अलग अलग टाइप के सेंटेंस है, इसमें क्या किया है, सरप्राइज इमोशंस, सरप्राइज इमोशंस, फीलिंग, एक्साइटमेंट, और इसके एंड्स हम लोग देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से ही हुआ है। डोंट टॉक, गेट आउट, देख रहे हैं इसका एंड किससे हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क से। गॉड आई एम एन ए1, एक्सप्रेशन फीलिंग देखो, व्हाई डोंट यू लिसन माय वर्ड्स, कम हियर इला, क्विक, स्टे देयर, डोंट कम हियर, oh my god, would you stop by here, like you are big persons. Oh, I was going to be there now. Hey, no smoking is here. ऐसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैसे सेंटेंस हमें रीडिंग करने के लिए भी एक्साइटमेंट होती है, हमें अच्छा लगता है। जैसे ये सेंटेंस कैसे रहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, इसमें भी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है डेफिनेशन। हमने सेंटेंस देखे, आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, डेफिनेशन। एन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस ग्रेट इमोशन और एक्साइटमेंट। ये जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या करते हैं, ग्रेट इमोशन और एक्साइटमेंट का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसका एंड जो होता है वो किससे होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, द हाउस इज ऑन फायर, और इसका एंड भी हम लोग देखते हैं कि किससे हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क से हुआ है। ओके, तो हमने अभी देखा कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेट इमोशन, एक्साइटमेंट, फीलिंग्स, और इसका जो एंड है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, वन बाय वन इसका रिवीजन देखें करेंगे। ओके, तो फर्स्ट अभी क्या है, फर्स्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, अभी मैं जो से रीड करता हूं आपको उसका आंसर बताना है। ओके, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, व्हाट इज योर फेवरेट फूड। अभी इस जो यहाँ पे जो सेंटेंस पूछा है वो कौन से टाइप का सेंटेंस है, वेरी गुड, द आंसर ऑफ दिस सेंटेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, बिकॉज दैट सेंटेंस आस्क अस क्वेश्चंस। हमने जो डेफिनेशन में जो सीखा है कि जो सेंटेंस हमें क्या करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पूछा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का भी यूज किया है, उससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस। ओके, सेकेंड, what kind of sentence is this, don't forget to study for the test। अभी हम लोग को ये ऑब्जर्व करना है सेंटेंस कैसे यूज किया है, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या किया है, डोंट फॉरगेट टू स्टडी फॉर द टेस्ट। हमें कमांड दिया है कि अभी क्या होने वाला है, आपकी टेस्ट होने वाली है, हमें पढ़ाई करना नहीं भूलना है। तो लास्ट में फुल स्टॉप आया है और इसमें कमांड आया है, तो इट इज द इम्पेरेटिव सेंटेंस, is because the sentence give us a command. Okay, third, what kind of sentence is this, bring your hat and sunblock with you to the beach। हम जब बीच पे जाएंगे तभी हमें क्या करना है, सनब्लॉक और विथ यू द बीच, हैट और वो लेके आना है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, और ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव, बिकॉज सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट। ओके, अभी फोर्थ, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस, वाओ व्हाट अ प्ले, कौन बता सकता है, वेरी गुड, दिस इज द टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ द सेंटेंस,
because it shows the strong feeling. Okay, so student, today we learn there are four types of sentence. First one is declarative sentence, second one is interrogative sentence, imperative sentence, and exclamative sentence. Okay, all of you understand the four type of sentence? Very good. So thank you.